Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before I begin, let's look at the comment box from yesterday's class. So the first comment is by VoidX9922. Sir, can you please discuss cyclones or conduct a separate MIT session on it? Speaking of MIT, there have not been any MIT update as of late. So don't worry, VoidX9922, I don't know your real name. So beginning next month, we are going to start with the MITs also. So every week there would be 1 or 2 MITs you would be getting on the YouTube channel. Moreover, today I am going to discuss cyclones in detail. So don't worry, cyclones will be covered today only. Okay. Next, Pranav Singh Rajava. So he has answered the questions which I asked in the previous class. I asked which are the topmost universities in the QS world ranking and which is the topmost university when it's come to Times Higher Education, and he has answered both of them correctly. We will discuss QS world ranking also. So in the next slide we are going to discuss that particular ranking methodology. Reason being that it provides for a university list also, and it provides for different institutions as per their expertise also. Okay, and in Times Higher Education it is correct, ISC Bengaluru is the top university. Third thing which he has answered is that INS Chakra by Russia, which is basically the question was that which was the first nuclear submarine being used by India. So it was INS Chakra, which we had preoccupied by Russia. Anjali Sharma has again given the right answer, INS Chakra by Russia. Krish Rathore 6515, INS Chakra by Russia given to India. IIT Bombay, IIT Kharagpur, IIT Kanpur, IIT Bangalore, IIT Bengaluru, IIT Roorkee were there in the QS world ranking. So yes, you are right, but it does not make any sense ki yes, these universities were there, but these kind of question wouldn't come ki which of the following university were in the list of the QS world ranking. They would probably be asking you which is the top university. Okay, so we are going to discuss that also. Again, Ramjas, INS Chakra by Russia to India. So again, Ramjas has also provided the correct answer. So there were 2 comments by Kamde Culture 4346 and C Day 4RB. So these were personal comments. So I have taken note of that also, and I'll do that also. Okay. So regarding the two questions which I asked you, I thought let's look at some of the question which I asked you yesterday in detail. So the first one is Times Higher Education World University Rankings 2024. So जो last year की rankings आई थी उस basis पे, so 24 में 23 की rankings आई हैं. So in the Times Higher Education World University Rankings, rank 1 was achieved by Oxford University of UK, and the top Indian university was ISC Bengaluru. And moreover, after the top 10 universities, it does not provide you with the exact university rank, it provides you a grade. So this top Indian university, ISC Bangalore, falls in the category of 201 to 250 ranked university. So we don't know the exact rank, but it is the top Indian university in the Times Higher Education. That is the more important information for us. We don't need to know the exact rank also of this particular university. Okay, but let me take QS World University ranking in somewhat detail. So the rank 1 in this particular ranking is of Massachusetts Institute of Technology, or MIT, very famous institution, and it's very easy to remember because for the last 12 years, this is the first ranked university in the QS World University ranking. Okay, now let's look at the important institutions in this particular university rankings. So the highest ranking is of the IIT Bombay. So in the previous slide, Pranav Singh has correctly provided the right answer. So rank 149 is of IIT Bombay. It's the top ranked Indian institution. So if I don't go subject wise, the various categorization of the universities, if I go in totality, then IIT Bombay would be the top ranked institution in all the sphere. Okay, but if I go category wise, rank 20 is achieved by Jawaharlal Nehru Universities in the Development Studies department. So JNU has a Development Studies department, and in that particular category, this university has been ranked 20th in that particular category. Okay. Moreover, in this particular chart, you can actually see subject-wise ranking of our different universities. For example, IIT Bombay, when it's come to just chemistry, last year it was 116. This year it is 95th. IIT Delhi in computer science, it was 67 last year. It is 63. IIM Ahmedabad in among business studies, last year its rank was 53rd, but this year it is 22nd. So just after JNU, the second university in the ranking terms is your IIM Ahmedabad. IIT Madras in engineering, mechanical and aeronautical and manufacturing engineering. It is now ranked 55. Earlier it was 49th rank.
ISC in physics and astronomy, there is a reduction in rank, 134th. AIIMS New Delhi in medicine is now 127th, and Jawaharlal University in sociology has now come up at 91st place, and certain other subject-wise rankings have also been provided. But I think what should interest you is whether you have to remember these many details of QS World University ranking. So my answer would be no. These detailed questions do not usually come in your exam. So what you can do is you can focus on the rank 1 in this particular case, which is the topmost university in this particular case, and this unusual ranking, rank 20 of Jawaharlal Nehru in development studies. What else you can do is this IIM Ahmedabad rank, which is rank 22 in business studies. So subject wise, category wise, डेवलपमेंट स्टडीज में आपका JNU टॉप पे है, एंड बिजनेस स्टडीज के अंदर में आपका अहमदाबाद टॉप पे है. अदरवाइज ओवरऑल इट इज IIT बॉम्बे जो आपके QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे है. ओके, सो आगे मूव करते हैं. और आज की न्यूज से गो थ्रू करते हैं. पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे इट वुड बी योर GDP और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिकॉज जो अभी आपकी RBI की रिपोर्ट आई है उसमें इट हैज बीन रिपोर्टेड कि आपकी जो GDP ग्रोथ रेट है इट इज 6.7% एंड इट इज बिलो द एक्सपेक्टेड रेट विच वॉज 7.1% एज पर RBI. सो RBI वॉज एक्सपेक्टिंग कि वी वर गोइंग टू बी ग्रोइंग विद द ग्रोथ रेट ऑफ 7.1%, बट देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 6.7. Moreover, many people had said कि we are going to grow by a much higher rate, more than 7.1. So हमने उसके भी अगेंस्ट में हम गए और हम उससे कम में कर रहे हैं. इसके अलावा अगर हम लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ रेट देखते हैं तो इट वाज 7.8%, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर द ग्रोथ रेट हैज आल्सो रिड्यूस्ड. सो इसके कई कारण है, बट मेजर रीजन है तो वो है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इन द लास्ट क्वार्टर इट हैज रिड्यूस्ड. एंड इसका मेन रीजन बस एक है कि लास्ट क्वार्टर के अंदर में वी हैड आवर इंडियन इलेक्शंस. और इंडियन इलेक्शंस में लगता है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो इलेक्शंस के अंदर में आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनके लिए वो पैसा रिलीज नहीं कर पाते, कोई नई स्कीम्स को लॉन्च नहीं कर पाते. मोर ओवर कुछ भी नई स्कीम जो लॉन्च हुई है, कोई नया वर्क होता है उसको इनिशिएट नहीं कर पाते. सो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो वहां पे रिड्यूस हो जाता है. एंड अगर हम GDP को कैलकुलेट करते हैं बाय द एक्सपेंडिचर मेथड, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है इट मेक्स अ मेजर चंक ऑफ द GDP कैलकुलेशन. सो एक बार का हम इस पर्टिकुलर न्यूज में जो हमारे काम का बेसिक्स है उसको गो थ्रू कर लेते हैं. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज GDP. सो GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. पिछले ALET एग्जामिनेशन में आप GDP की डेफिनेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, 4 डेफिनेशन थी, यू हैड टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन. एंड अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि GDP क्या होता है, इट इज बेसिकली द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी in a financial year. It is calculated quarterly. So we calculate it quarterly and ये टोटल जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी टोटल वैल्यू बताता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, which basically means कि हम इसमें रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके, तो ये आपकी GDP की डेफिनेशन हो गई. और जो वैल्यू है ये 6.7%, ये लास्ट क्वार्टर की है. लास्ट क्वार्टर की मतलब लास्ट 3 महीने 4 महीने की आपकी, लास्ट 3 महीने की, सॉरी 3 महीने में आती है आपकी. तो लास्ट 3 मंथ्स की आपकी ये क्वार्टरली ग्रोथ बताता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से ग्रोथ करी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर. सो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या हमें आपको हर क्वार्टरली ग्रोथ को याद करना है नहीं करना है? सो माय आंसर वुड बी नो. आपसे क्वार्टरली ग्रोथ नहीं पूछी जाती है. हो सकता है आपसे एनुअल GDP पूछ ली जाए. अगेन एनुअल GDP भी आपको जो मिलेगी वो नवंबर के अराउंड में उसका डेटा कुछ हमारे पास होगा, तो तब हमें थोड़ी क्लैरिटी होगी कि हम एनुअल GDP क्या मान सकते हैं. लास्ट ईयर की अगर मैं आपको GDP बताऊं, सो लास्ट ईयर की एनुअल GDP थी वो 7.1% बाय वन एस्टिमेट ऑफ RBI. सो अगेन इसमें भी डाउट रहता है. सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, नवंबर के अराउंड में जस्ट पे अटेंशन. नवंबर 1 को आई ट्राई कि आपको जो फाइनल GDP डेटा है मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूं, और उसी को ही हम एक बार का बाय चांस अगर क्वेश्चन है तो उसी को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद जो पर्टिकुलर मेथड इंडिया यूज करता है GDP कैलकुलेशन के, उसमें जो मेथड है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. सो GDP कैलकुलेट करने के कई मेथड हो सकते हैं. GDP को हम कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस और जो इंडिया यूज करता है वो है एक्सपेंडिचर मेथड. एक मेथड होता है इनकम मेथड और एक मेथड होता है वैल्यू एडिशन मेथड.
सो ये तीन मेथड से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हम जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, जो उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारे को पूरी इकोनॉमी में क्या एक्सपेंडिचर हो उसका आइडिया लग जाता है। तो हम उसको अगर सबको ऐड कर दे सारे सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को, तो विल गेट अ आइडिया ऑफ द जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और ऑफ अ पर्टिकुलर क्वार्टर। सिमिलरली अगर मैं जितने भी मेरे कंज्यूमर्स हैं, जितने भी मेरे यहाँ पे इनकम अर्नर्स हैं, उन सबकी अगर इनकम को ऐड कर दूं सारे सेक्टर्स के इनकम अर्नर्स की, तो भी मैं जीडीपी को कैलकुलेट कर सकता हूं। और तीसरा होता है वैल्यू एडिशन। तो मेरे जो जितनी भी फर्म्स है मेरी इंडिया के अंदर में, जितनी भी मेरे कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अगर मैं उन सबका वैल्यू एडिशन कर दूं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने लास्ट में फाइनल प्रोडक्शन क्या करा और उनका कॉस्ट क्या था, तो अगर मैं उसके कॉस्ट को निकाल दूंगा तो मुझे वहां पे वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। और सारे इंडिया की जितनी भी फर्म्स हैं उनका मैं अगर टोटल कर लूंगा वैल्यू एडिशन, तो भी मैं जीडीपी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो तीन मेथड मेरे पास हैं जिसके थ्रू मैं जीडीपी को कैलकुलेट करता हूं। तो यहां पे हम जो इंडिया मेथड यूज करता है उसको एक बार का देखेंगे। सो इट इज बेसिकली जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, विच इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर बाय 4 सेक्टर्स। जो 4 सेक्टर्स हैं उनके एक्सपेंडिचर को मैं ऐड कर रहा हूं, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी हम इसे बोलते हैं, विच इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। आपके घर में, आपके घर वालों ने, यानी आपने और मैंने, हम लोगों ने क्या यहां पे खर्चा करा है अपने इकोनॉमी के अंदर में, वो सारा का सारा कंजम्पशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट पे आता है आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। सो ये वो खर्चा है जो आपकी फर्म्स करती हैं और ये बहुत ही प्रोडक्टिव खर्चा होता है, बिकॉज यहां पे वो इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल कंपनी में जो एम्प्लॉइज खर्चा करते हैं, जो काम करते हैं, वो जो सैलरी लेके जाते हैं, वो तो हो जाएगा कंजम्पशन का पार्ट। बट कंपनी एज अ होल क्या खर्चा करती है, बेसिकली वो इन्वेस्ट करेगी कहीं ना कहीं पे, वो कोई नई फैक्ट्री लगाएगी, नए लेबर्स को हायर करेगी, तो वो सब उसका इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है ये भी एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। थर्ड पे आता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, विच इज बेसिकली एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट 2 तरह के खर्चे करती है, जिसको एक को तो हम बोलते हैं आपके रेवेन्यू रिसीट्स और एक होते हैं आपके कैपिटल रिसीट्स। तो जो रेवेन्यू होता है वो तो होता है रेगुलर खर्चा, फॉर एग्जांपल सैलरीज और पेंशन, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे वो वाला खर्चा, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो यहाँ पे वो होता है कि जो वो आपके मशीनरी के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपका कैपिटल होता है। तो यस, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट भी करता है, बट जब गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट को कर रहा है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट मानते हैं। तो यहां पे हम गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको यहां पे इंक्लूड करते हैं। और फाइनली एनएक्स रिप्रेजेंट करता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के सेक्टर में मैंने क्या एक्सपेंडिचर किया है, क्या मैंने अर्निंग करी है, बेसिकली वो मेरा पार्ट होता है एनएक्स का पार्ट, या एनएक्स बेसिकली मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और अगर मैं इन चारों को ऐड कर देता हूं तो मेरी जीडीपी मुझे मिल जाती है। अब यहां पे जो ये रिपोर्ट आई है इस क्वार्टर की, इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन है, जो आप और मैं कंजम्पशन कर रहे हैं, वो हमने इंक्रीज करा है। और मेजरली जो कंजम्पशन बढ़ा है वो रूरल कंजम्पशन बढ़ा है। एंड इट इज अ गुड न्यूज कि रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है, बिकॉज रूरल कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है कि रूरल में जहां पे आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है इंडिया की, उसका जो कैपिटल, उसका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। और हम रूरल कंजम्पशन इंक्रीज कैसे पता पड़ता है, तो ऑब्वियसली एक तो होता है कि जो आपके एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, बेसिकली जो भी आपको किराने की शॉप पे मिलता है, जो कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी सेल्स इंक्रीज होती है, तो वी अंडरस्टैंड कि यस रूरल कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। दूसरा होता है कि कुछ भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, उस पर्टिकुलर मार्केट में सेल्स बढ़ रही है तो होता है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स की अगर सेल बढ़ रही है, जो एग्रीकल्चर में ही यूज होना है प्राइमरीली, और इसके अलावा ट्रैक्टर्स और बाकी टूल्स की, एग्रीकल्चर टूल्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर अगर ग्रो करता है तो वी बिलीव कि रूरल कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसके बाद यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इस बार डिक्रीज हुआ है, और यहां से आप एक इन्फरेंस भी ड्रॉ कर सकते हो कि अगर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है, ऑल्दो आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, स्टिल आपकी टोटल जीडीपी लो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इससे पहले वाला, इससे पहले ऑल्सो यू आर हैविंग अ लर्निंग ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग ऑल्सो, कि इससे पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर में ग्रोथ ज्यादा थी बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा था, विच मीन्स कि जीडीपी के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
यानी मेजरली अगर आपकी जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है, अच्छे अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, विच इंक्लूड्स योर कैपिटल एक्सपेंडिचर आल्सो बाय द गवर्नमेंट। और बिकॉज इस बार इलेक्शन थे तो इस वजह से आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हुआ है, और उसकी वजह से आपकी जीडीपी भी डिक्रीज हुई है। सो इट शोज कि आपकी जीडीपी से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि आपकी जो जीडीपी इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, इसके बाद एक और इसमें न्यूज आई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स रियल जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो आउटफॉर्म कर चुका है जीडीपी से। तो एक ग्रॉस वैल्यू एडिटेड करके भी आपका एक तरीका होता है जिससे आप इकोनॉमी के अंदर में क्या इंप्रूवमेंट्स हुआ है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का जीडीपी से डिफरेंस कैसे कर सकते हैं हम? सो जो जीडीपी होता है इसमें मैं टोटल वैल्यू निकालता हूं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। सो इसके अंदर में मैं टैक्स को इंक्लूड करता हूं और सब्सिडीज को मैं यहां पे एक्सक्लूड करता हूं। और ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है कि हर मेरी जितनी भी फर्म्स है उन्होंने क्या वैल्यू ऐड करी है, तो मैं इसके अंदर में उसकी वैल्यू निकालने के लिए उनका जो फाइनल वैल्यू एडिशन है उसमें सब्सिडी को तो इंक्लूड करता हूं जो भी मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काम आ रहा है, और उसमें से मैं टैक्सेशन रिमूव कर देता हूं। बिकॉज टैक्सेशन जो है वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। सब्सिडी यस मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए मैं वैल्यू एडिट के अंदर में सब्सिडी को इंक्लूड करता हूं और टैक्सेशन को यहां पे रिमूव कर देता हूं। तो जीडीपी और जीवीए, आप जीडीपी से जीवीए भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, जीडीपी में से आपको टैक्स को तो रिमूव कर देना है और सब्सिडी को इंक्लूड कर देना है, तो आपको जीवीए मिल जाएगी। सो अगर मैं फॉर्मूला भी बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं इसका, जीवीए इक्वल टू जीडीपी माइनस टैक्सेशन और प्लस सब्सिडी, तो मुझे जीवीए की वैल्यू मिल जाएगी। ग्रॉस वैल्यू एडिड कि मैंने एक साल के अंदर में क्या वैल्यू एडिशन करा मेरी इकोनॉमी के अंदर में। सो जीडीपी के अंदर अगर मैं सब्सिडी इंक्लूड करूं और मैं टैक्स के जो मेरे प्रोविजंस उसको रिमूव कर दूं, टैक्स का जो मैंने प्रोविजनिंग करा उसको रिमूव कर दूं, तो मुझे ग्रॉस वैल्यू एडिड मिल जाएगा। और यहां पे हमें रिपोर्ट मिली है कि जो रियल जीवीए है अगर मैं इसे इन्फ्लेशन एडजस्ट करता हूं वो जीडीपी से भी ऊपर गया है। ओके, इसके बाद एक पॉइंट जो मैंने इसमें देखा, आई एम श्योर आपको पता होगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट थी इट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ओनली, एंड ही इज वी अनंत नागेश्वरन, जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ कंसर्न्स बताए हुए हैं कि आगे जाके जीडीपी को लेकर, ग्रोथ को लेकर क्या क्या कंसर्न्स है। तो पहला तो है इन्फ्लेशन। अब व्हाई इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम? इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम बिकॉज जीडीपी ग्रोथ करनी, अगर आपको जीडीपी ग्रोथ अच्छी करनी है तो आपकी कंट्री के अंदर में इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए। आपकी कंट्री के अंदर में इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए। और अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो आरबीआई इन्फ्लेशन हाई होता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को हाई रखती है। सो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को हाई रखती है। आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को हाई रखेगी तो फिर जो लोग या जो कंपनीज और जो गवर्नमेंट है वो कम लोन्स लेगी। देयर वुड बी अ रिडक्शन इन लोन्स रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो जीडीपी कम होगी। ओके, सो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में रहे। और इट हैज बीन रिपोर्टेड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑल्सो कि इंडिया के अंदर में कोर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है और हेडलाइन इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन को हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। दो मेजर तरीके होते हैं, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन होता है जब मैं सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज के इन्फ्लेशन को चेक कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपकी स्टील इंडस्ट्रीज, आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फर्टिलाइजर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब मेरे कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो मैं अगर सिर्फ इन कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज की मैं इन्फ्लेशन को चेक कर दूं कि इसमें क्या आपका महंगाई दर बढ़ रहा है, तो वो कोर इन्फ्लेशन होता है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है मेरा कंट्री का टोटल इन्फ्लेशन, यानी कि मैं यहां पे कोर इंडस्ट्री प्लस यहां पे जो मेरी फ्यूल और एनर्जी वाली इंडस्ट्री है, फ्यूल या एनर्जी इंडस्ट्री है, प्लस जो यहां पे मेरी आपकी फूड इन्फ्लेशन जो मेरा फूड इन्फ्लेशन है उसको भी मैं इसके अंदर में इंक्लूड कर लेता हूं। यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन मुझे प्रेजेंट में पूरा जो मेरी रिटेल इन्फ्लेशन, मेरा टोटल इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको शो करता है। और कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो मुझे सिर्फ मेरी कोर इंडस्ट्रीज के लिए इन्फ्लेशन को शो करता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन तो आपको रियल पिक्चर दिखा रहा है आज की, बट कोर इन्फ्लेशन आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म पिक्चर के लिए।
सो लॉन्ग टर्म अगर आपको चेक करना हो कि इन्फ्लेशन आगे जाके बढ़ेगा या कम होगा, तो हम कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करते हैं। व्हाई सो? बिकॉज कोर इन्फ्लेशन उन इंडस्ट्रीज का होता है जो कोर होती हैं, जो मेजरली बाकी इंडस्ट्रीज में जिनका यूज होता है। फॉर एग्जांपल आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है, वो उसकी जो स्टील वो प्रोड्यूस करेंगे वो बाकी इंडस्ट्रीज भी यूज करेंगे। तो अगर कोर इंडस्ट्रीज के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, विच मींस आगे जाके जब उस पर्टिकुलर स्टील, उस इन्फ्लेटेड स्टील की जो प्राइस बढ़ी हुई है, उससे कोई नई फैक्ट्री बनाएगा तो ऑब्वियसली वो उस पर्टिकुलर कॉस्ट को भी इंक्लूड करेगा। तो आगे जाके आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर में, आगे जाके आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो कोर इन्फ्लेशन जो आपका आज के टाइम में है, वो आपको लॉन्ग टर्म में बताता है कि आगे जाके इन्फ्लेशन में क्या होने वाला है। ओके, इसके बाद सेकेंड उन्होंने बताया ग्लोबल डिस्रप्शन। सो ऑब्वियसली जो अभी आपके वॉर चल रहे हैं और अभी तक जो सिचुएशन है वो काम डाउन नहीं हुई है आपके दो जगह पे, इजराइल हमास में और आपके रशिया यूक्रेन वॉर, उसको 3 साल होने को आ रहे हैं और रशिया यूक्रेन वॉर इस टाइप से कंटिन्यू हो रहे हैं। इन दोनों के वॉर के रिपरकशंस आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेड सी के अंदर में जो आपकी शिप्स ट्रेवल करती हैं, एंड यू शुड नो दिस कि इंडिया का जो 90% ट्रेड वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम मतलब टोटल जो एक्सपोर्टेड ट्रेड है वो आपका बाय पोर्ट्स होता है, बाय शिप्स होता है। और 70% जो ट्रेड का वैल्यू है, एक्सपोर्ट ट्रेडेड है, टोटल वैल्यू है उसका 70% आप पोर्ट से करते हो, शिप से करते हो। सो यू नो कि अगर आपकी शिपिंग सेक्टर अगर आपका सेफ नहीं, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, सो हाउ रिस्की इट इज फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। तो जो ग्लोबल डिस्ट्रप्शन है ये भी कंसर्न पैदा कर रहे हैं फॉर द जीडीपी ग्रोथ। एंड थर्ड इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर भी उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ रेट्स वाज जस्ट 2%। ऑन दी अदर हैंड जो सर्विसेज आपका 10% तक भी ग्रो करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कई बार 5 to 6% ग्रो करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर 2 से 3% ग्रो करता है, एंड 2% इज अ वेरी लो रेट। सो ऑल्दो रूरल कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा ग्रोथ को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सो इट इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर योर इंडियन इकोनॉमी। तो ये कुछ कंसर्न्स है जो इंडियन इकोनॉमी के इन्फ्लेशन के अंदर में, हर जगह में, जीडीपी में, ग्रोथ रेट में, हर जगह में आपके कंसर्न्स पैदा कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट न्यूज थी आपकी ये रिगार्डिंग द जीडीपी। इसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कल वाधवन पोर्ट पे आपके 1-2 आर्टिकल्स आए थे, वो मिस आउट हो गए, तो आई थॉट कि आज मैं उसको कवर कर लेता हूं, बिकॉज कल के आर्टिकल में कुछ ऐसा नहीं था जिसको हम कवर करें, बट आई थॉट कि पोर्ट्स ऑफ इंडिया को हमें कवर कर लेना चाहिए। ऑल्सो एक और चीज मैंने नोट करी है कि कई स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं या 13 मेजर पोर्ट्स है। और द प्रॉब्लम इज कि अगर आप गूगल सर्च करोगे, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाओगे, तो आपको कई जगहों पे 12 मिलेगा एंड कई जगहों पे 13 मिलेगा। एंड उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने 13th पोर्ट एक बार डिक्लेयर करा था, और वो था आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर करके जो अंडमान एंड निकोबार में आपका पोर्ट है, उसको 13th मेजर पोर्ट डिक्लेयर करा गया था, बट इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को फिर गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। सो एज ऑफ नाउ सिर्फ 12 मेजर पोर्ट्स है इंडिया में, देयर आर नॉट 13 पोर्ट्स। और मैं अपनी नॉलेज, मैं आपको जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसको बैकअप कर रहा हूं बाय प्रॉपर गवर्नमेंट डेटा, बाय गवर्नमेंट डेटा। तो गवर्नमेंट ऑफिशियली पीआईबी करके है, प्रेस इंडिया ब्यूरो। प्रेस इंडिया ब्यूरो पे वो अपनी जो भी उसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो यहां पे शेयर करता है। और पीआईबी में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये ईयर एंड रिव्यू निकालते हैं। यूजुअली आपका जैन-फेब में आता है वो ईयर एंड रिव्यू, एंड उस पर्टिकुलर रिव्यू के अंदर में दे हैव टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट इन द पोर्ट सेक्टर, एंड वहां पे इन्होंने 12 पोर्ट्स के बारे में बात करी, विच बेसिकली मींस कि गवर्नमेंट आपके सिर्फ 12 पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है। तो ये 12 पोर्ट्स हैं, उनकी आपको मैं लिस्ट भी यहां पे मैंने प्रोवाइड करी है, 12 के 12 यहां पे, जिसमें 2-3 चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें स्पेशल कौन कौन से हैं। तो एक जो स्पेशल पोर्ट है आपका, वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवसेना पोर्ट और ऑफ महाराष्ट्र। तो ये इसे JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं, एंड नवसेना पोर्ट भी बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र के अंदर में है। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। कंटेनर पोर्ट में सबसे ज्यादा कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा मेजर पोर्ट ये है आपका। इसके बाद और भी सारे कई पोर्ट्स हैं, बट उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट उड़ीसा का। अब ये इंपॉर्टेंट इस साल इसलिए बिकॉज अगर मैं लेटेस्ट 24-25 का डेटा देखता हूं, नॉट 24-25, 23-24 का देखता हूं, तो इस साल पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा का है, इट इज द लार्जेस्ट मेजर पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम्स। तो सबसे ज्यादा जो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा है वो इस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू करा है।
ऑल्दो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आपका JNPT है, बट जो वॉल्यूम के अमाउंट में कि मैंने कितना यहां से एक्सपोर्ट करा, कितना अमाउंट एक्सपोर्ट करा और कितना यहां पे इंपोर्ट करा, अगर मैं वो टोटल देखता हूं तो इस बार बाजी मारी है पारादीप पोर्ट उड़ीसा ने। सो ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपके, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोर ओवर यू शुड नो दिस कि ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है उसका नाम है कोलकाता पोर्ट, एंड कोलकाता पोर्ट को आपने रीनेम करा है। सो इफ यू नो द रीनेम क्या करा गया है इस कोलकाता पोर्ट को, सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इसके अलावा जो वाधवन पोर्ट है, दिस हैज आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन इट विल बिकम ऑपरेशनल, अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, इट विल बी योर 13th मेजर पोर्ट। तो ये जब पोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, वाधवन पोर्ट, ये इंडिया का 13th मेजर पोर्ट होगा। एंड मोर ओवर जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो फेजेस में ऑपरेट करोगे आप, पहले 1 टर्मिनल बनाओगे, फिर 2 बनाओगे, फिर 3 बनाओगे, इस तरीके से आप इसको लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बनाओगे। अगेन ये आपके महाराष्ट्र का 3rd ऐसा पोर्ट बन जाएगा, दिस वुड बी द 3rd पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, वहां पे मुंबई पोर्ट पहले से है, वहां पे आपका ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पहले से ही है, और आपका 3rd पोर्ट हो जाएगा वाधवन पोर्ट यहां पे। ओके, सो ये 3 मेजर पोर्ट्स वाला एक स्टेट हो जाएगा, यूनिक स्टेट टू हैव 3 आपके मेजर पोर्ट्स जहां पे होंगे। ठीक है, सो आई जस्ट टॉक्ड अबाउट टर्मिनल, सो आई थॉट कि आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं कमेंट बॉक्स में कि इंडिया जो है वो पहला फॉरेन पोर्ट ऑपरेशनलाइज कर रहा है इंडिया, विच इज बेसिकली चाहबार पोर्ट। तो ये सबको पता होगा। व्हाट आई वांट यू टू आंसर इज कि इसके अंदर में कौन से 2 टर्मिनल हैं, कौन से 2 टर्मिनल्स हैं, और जो टर्मिनल है वो कौन सा है जो इंडिया ऑपरेशनलाइज कर रहा है। सो 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल मतलब 2 एरियाज हैं एक ही पोर्ट में, तो एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसको इंडिया ऑपरेशनलाइज करेगा अडानी पोर्ट के साथ। प्रोबेबली ये वहां पे एक सेज बनाया जा रहा है, वहां पे आपका MOU साइन हो रहा है, तो प्रोबेबली इसको अडानी ग्रुप ही इसको हैंडल करेगा। बट व्हाट माय पर्पस इज टू आस्क यू इज कि ये जो चाहबार पोर्ट है इसमें 2 टर्मिनल्स, उन दोनों टर्मिनल के नाम क्या है और इंडिया कौन सा वाला टर्मिनल जिसको ऑपरेशनलाइज करेगा। ओके, सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर सकते हो या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट also of this information. Okay, नेक्स्ट पे आते हैं, साइक्लोन आसना फॉर्म्स ओवर कच्छ, हैवी रेन बैटर्स गुजरात। तो लाइक आई टोल्ड यू कि साइक्लोन को हम थोड़ा इस बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। 2-3 ही इंफॉर्मेशन होती है जो आपके काम की होती है। सो पहले हम इस कंटेक्स्ट में, न्यूज के कंटेक्स्ट में आ जाते हैं कि जो साइक्लोन कल हम जिसकी बात कर रहे थे फॉर्म हो सकता है, वो फाइनली कल फॉर्म हो चुका है और आज उसकी न्यूज आपके न्यूज़पेपर्स में है, और उस साइक्लोन का नाम रखा गया साइक्लोन आसना। आसना, तो ये आसना एक अरेबिक टर्म है और जो पाकिस्तान ने नेम किया है। इसका मतलब होता है कि जिसको प्रेज करा जाए। आसना का मतलब ये सब आपको जानना नहीं है, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर इंफॉर्मेशन कि इसको पाकिस्तान ने नेम करा था। सो आई होप यू आर अवेयर कि जो भी साइक्लोन्स आपके नॉर्थ इंडियन ओशन में आते हैं उनको जो यहाँ की कंट्रीज हैं 13 कंट्रीज 12+1 यानी 12+ इंडिया, इन्होंने ही अलग अलग नाम दिए। तो साइक्लोन्स को नेमिंग करी जाती है सो दैट इनकी वार्निंग जो होती है लोगों को वो इजीली मिल सके। तो इसका नाम पाकिस्तान ने करा था। अब ये एक यूनिक आपका साइक्लोन है। रीजन बीइंग कि यूजुअली आपके जो साइक्लोन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन आपका ओशन में होता है, ओपन ओशन सीज में होता है। बट ये एक पर्टिकुलर ऐसा आपका साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ है जो स्टार्ट तो हुआ था लैंड पे, तो राजस्थान के अंदर में इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ एंड देन इट मूव टू द सी एंड इट टर्न्ड इनटू अ साइक्लोन। सो आपके राजस्थान के अंदर में लो प्रेशर हुआ, उससे डिप्रेशन बना, ये डिप्रेशन आपका सी के साइड में मूवमेंट हुआ और फिर ये सी में जाके एक साइक्लोन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। अब व्हाई इज इट स्पेशल? बिकॉज अरेबियन सी के अंदर में नॉट जस्ट दिस बट साइक्लोन फॉर्मेशन इन ऑगस्ट इज वेरी 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 रेयर। तो कितना रेयर है कि 1891 से 100 ईयर से ज्यादा की हिस्ट्री में सिर्फ ऐसा 4 बार हुआ है कि अगस्त मंथ के अंदर में आपका अरेबियन सी में साइक्लोन बना। और जो लास्ट साइक्लोन था वो 1976 में बना था। और लास्ट 150 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर में आपका जो ये साइक्लोन फॉर्मेशन है ऐसा सिर्फ 4 बार हुआ है, इंक्लूडिंग दिस वन। तो साइक्लोन आसना ऐसा 4th ऐसा है। सो रिमेंबर, अगर क्वेश्चन भी आता है तो 4th नंबर का साइक्लोन है यहां पे आसना। इससे पहले 3 और इंसिडेंट हुए, लास्ट इंसिडेंट 1976 में हुआ था आपका। ठीक है, इसके बाद हम IMD के बारे में बात करेंगे बिकॉज IMD इज द डिपार्टमेंट और इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। तो जो आपकी जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें IMD है बिकॉज IMD इज द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ WMO। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये रीजनल स्पेशलाइजेशन मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। 6 ऐसे सेंटर हैं आपके पूरे वर्ल्ड में जिसमें से एक आपका IMD है।
और इस पर्टिकुलर IMD को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो फोरकास्टिंग करना कि साइक्लोन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कब बनेगा, वो सब नेम करना और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को वार्निंग करना, जहां पर भी हो सकता है वहां पे वार्निंग करने का काम आपके IMDB का ही है। तो नॉट जस्ट फॉर इंडिया, IMD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी होल ऑफ इंडियन ओशन कि यहां पे जो भी साइक्लोन फॉर्मेशंस होते हैं उन सबको रिपोर्ट करे, सबको इन्फॉर्म करे। और यहां पे IMD आई वुड से अकेला नहीं करता है। 13 कंट्री, जो 12+1 इंडिया, जो 13 कंट्रीज हैं, इन सब ने 13 नेम सजेस्ट करें। 13 कंट्रीज, 13 नेम्स, टोटल ऑफ 169 नेम्स। टोटल 169 नेम्स हैं जो इन लोगों ने सजेस्ट करे हैं। और हर बार जब भी कोई साइक्लोन आता है जो 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा होता है, उसे हम साइक्लोन डिक्लेयर करते हैं। तो अगर उसकी स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो साइक्लोन डिक्लेयर होता है और हम उसको नेम करते हैं। और नेमिंग सिर्फ इसलिए करी जाती है सो दैट कि अगर कहीं पर भी वार्निंग देनी हो तो इजी नाम होना चाहिए, इजीली प्रोनाउंस करना बहुत इजी होना चाहिए। हर कंट्री के लोगों को उसको बोल पाना इजी होना चाहिए। समझना अलग बात है कि इसका आसन का मतलब क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बोल पाना, उस पर्टिकुलर वार्निंग को डिस्पर्स कर पाना शुड बी एन इजी टास्क। तो इस वजह से हम इजी नाम को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपने 13 कंट्रीज ने 13 नाम बताए थे और 169 टोटल्स हमने एज ऑफ नाउ सजेस्ट कर रखे हैं। जब ये लिस्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद हम नई लिस्ट डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये है आपका। और IMD आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आता है, कई लोग हो सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में आता हो, बट यू शुड नो कि ये अर्थ साइंसेज में आता है। सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो आपका क्लैट या एलेट उन क्वेश्चंस पे भी फोकस ज्यादा करता है जो अलग लग सकते हैं, जो यूनिक हो सकते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे, दिल्ली में है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1875 के अंदर में। सो दैट्स व्हाई आल्सो इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब यहां पे लाइक आई टोल्ड यू कि हम साइक्लोन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पे आपको अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, आपको साइक्लोन फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट कंडीशंस पता होनी चाहिए। साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए क्या 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन होती है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर, ओशन टेम्परेचर जो है, इट शुड बी अराउंड एटलीस्ट 27 to 28 डिग्री सेल्सियस और मोर। सो ओशन का जो सी सरफेस टेम्परेचर है इट शुड बी 27 और 28 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा होगा तो ही साइक्लोन फॉर्मेशन हो पाता है। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक अपैरेंट फोर्स होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करती है और ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है। और दिस इज द मेन रीजन कि अगर आपकी विंड्स ऐसे मूव करके आ रही है तो वो एक साइक्लोनिक फॉर्मेशन ले। यूजुअली साइक्लोन जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन करते हैं आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉट यूजुअली बट ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज करते हैं आपके वो सदर्न हेमिस्फीयर में। सो इट्स अ नोन फैक्ट कि अगर आपका कोई भी साइक्लोन फॉर्मेशन नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज करता है और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो वो क्लॉकवाइज करता है। इंटरेस्टिंगली, अगर कोई साइक्लोन जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में हुआ हो और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो, जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करता है वो अपना मूवमेंट चेंज करके साइक्लोन क्लॉकवाइज फॉर्मेशन में आ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स होता है जो उसको सर्कुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एंड तीसरी रिक्वायरमेंट होती है एब्सेंस ऑफ वर्टिकल विंड्स। सो वर्टिकल विंड्स यहां पे एब्सेंट होनी चाहिए। वो क्यों कि अगर कहीं पे लो प्रेशर है और हाई प्रेशर से चारों तरफ से विंड आ रही है तो अगर वर्टिकल विंड्स होंगी तो ये सारी विंड्स ऊपर चली जाएंगी और साइक्लोन फॉर्मेशन को ये वहां पे फुल प्रॉपर्ली नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ वर्टिकल विंड आल्सो। तो अगर ये 3 कंडीशंस अगर कहीं पर भी प्रेजेंट होती हैं तो साइक्लोन फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, आपको साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए बस इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी 3 कंडीशंस होती हैं जो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे। सीनियर आईकार साइंटिस्ट हायर लेटरली विदाउट रिजर्वेशन। तो यहां पे लेटरल रिजर्वेशन का आपका क्वेश्चन आया है। मोर ओवर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेटरल रिजर्वेशन इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लीगल रीजनिंग इंक्लूडेड। लीगल रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका ऑब्वियसली जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लेटरल रिजर्वेशन को हम कई बार स्पॉइल सिस्टम भी बोलते हैं। और इनको स्पॉइल सिस्टम क्यों बोला जाता है? द ओनली रीजन इज कि यहां पे स्पॉइल करना होगा सिस्टम को तो आप यूज करते हो। सो रेदर देन यूजिंग मेरिट, यहां पे जो आपकी पीपल इन अथॉरिटी होते हैं वो लोगों को इन बिटवीन यहां पे आपका यहां पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो यूजुअली जो मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा,
सो एग्जाम्पल के लिए जैसे आई कार के अंदर में अगर आपको जॉब करनी है तो यहां पे 3 स्टेज आपका प्रोसेस होता है। तो आप प्रीलिम्स एग्जाम दोगे, मेंस एग्जाम दोगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा। और जब आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप आई कार के अंदर में एक साइंटिस्ट या जो भी रोल के लिए आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके लिए आप जॉब कर पाओगे। बट लेटरल एंट्री में क्या होगा, आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यहां पे आप बाईपास कर सकते हो और डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होके, या इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि लेट्स से कि अगर कैंडिडेट्स कम हो तो विदाउट इवन एन इंटरव्यू आप लेटरल एंट्री भी कर सकते हो। बट यूजुअली इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आप यूजुअली करते हो। मोर ओवर यहां पे ये वाली चीज पॉसिबल इसलिए हो पाती है बिकॉज आपके सुप्रीम कोर्ट का जो इंद्रासानी जजमेंट है और उसके बाद एम नागराज का जजमेंट है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो पे स्पेशलाइज्ड फील्ड होते हैं वहां पे फॉर एग्जाम्पल जो एमडी की डिग्री होती है या जो हायर डिग्री जो आपके स्पेशलाइजेशन होते हैं आपके मेडिकल साइंसेस के अंदर में और बेसिकली साइंस सेगमेंट के अंदर में, एग्रीकल्चर रिसर्च के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है वहां पे आप रिजर्वेशन नहीं देते हो, वहां पे रिजर्वेशन को आप एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि लेट्स से कोई पर्सन है जो मेरिट सिस्टम के थ्रू एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचा और वो पिछले 10 साल से 15 साल से ये जॉब कर रहा है एंड नाउ इट इज टाइम फॉर हिज प्रमोशन और अब उसका प्रमोशन का टाइम है। बट बिकॉज सीनियर लेवल पे आप लेटरल एंट्री कर रहे हो तो जो सीनियर पोजीशन है वो पहले से ही फिल्ड अप है, तो आपके पास प्रमोशन का ऑप्शन ही नहीं है। ऑब्वियसली विद टाइम आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, आपके पे कमीशन के थ्रू आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, बट बिकॉज आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपका जो ओहदा है, आपका जो पोजीशन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट हैज नाउ बीन चैलेंज और इट हैज बीन रिपोर्टेड कि आई कार के अंदर में 2007 से 2700 ऐसे लेटरल एंट्रेंस आ चुके हैं विच इज अबाउट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ आई कार। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो टोटल एम्प्लॉइज हैं उसके करीब 50% आपके लेटरल पोजीशन से एंटर हुए हैं एंड इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ योर सीनियर पोजीशन आल्सो, यानी सीनियर पोजीशन के अंदर में आप मेरिट सिस्टम के थ्रू पहुंच ही नहीं पा रहे हो। अब यहां पे एक ये इश्यू क्यों क्रिएट हुआ है, बिकॉज मेनी पीपल बिलीव कि इट इज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन, सिंपली बिकॉज कि लेटरल एंट्री सिस्टम में एससी एसटी रिजर्वेशन नहीं होता है। तो जब आप लेटरल एंट्री कर रहे हो तो वहां पे रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप फाइनली क्या करोगे, आप सीधे वहां पे इंटरव्यू प्रोसेस को कंडक्ट करोगे और इंटरव्यू प्रोसेस में जो मार्क्स आए हैं तो आप डायरेक्टली उसी हिसाब से रिक्रूट करोगे एंड समहाउ यहां पे आप जो एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है उसको बाईपास कर देते हो, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो चुकी है बिकॉज of your article 15 and article 16. तो because of this now it has become a big issue. You must remember recently अभी 45 आपकी गवर्नमेंट ने भी, यूपीएससी ने यहां पे लेटरल एंट्री से पोजीशंस निकाली थी बट उसको वापस से बैकआउट कर लिया गया बिकॉज ऑफ द सेम रिजर्वेशन इश्यू ओनली, कि लेटरल एंट्री के अंदर में रिजर्वेशन नहीं होता है। तो यहां पे यूपीएससी को वापस से बोला गया है कि वापस से यहां पे एडवर्टाइजमेंट निकाला जाए एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि अब इसके अंदर में लेटरल एंट्री में भी आप रिजर्वेशन का यहां पे यूज देखो। ओके इसके बाद अगर हम आईकार के बारे में पढ़ें, सो आईको स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो पर्टिकुलरली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसका काम क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड्स के अंदर में रिसर्च करके देना एंड यू शुड नो द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आल्सो विच इज 1929, यानी कि ये बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है। वेरी सून इट विल बी कंप्लीटिंग इट्स 100 ईयर एनिवर्सरी। प्रोबेबली अगर 100 ईयर इसी साल हो रहे होते तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, बट लेटरल एंट्री इंपॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड अगर आप आर्टिकल देखते हो, फॉर एग्जाम्पल इन यस्टरडेज हिंदू न्यूज़पेपर देयर वर रियली गुड आर्टिकल्स ऑन लेटरल एंट्री, तो आप उनको पढ़ सकते हो, आपको बहुत अच्छा उसमें स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स मिलेंगे। कल का ओपेड पेज जो है आपका हिंदू न्यूज़पेपर का, उसमें लेटरल एंट्री का आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ओके, so next news is that the Education Ministry tells Tamil Nadu to sign MOU to get Samagra Shiksha funds. So the news is that the central government has denied funds to the Tamil Nadu government with regard to a particular scheme which is known as Samagra Shiksha Abhiyan. So this is not a new scheme. Samagra Shiksha Abhiyan is an old scheme and it is basically a amalgamation of the earlier schemes of the previous governments. So Samagra Shiksha Abhiyan was started in the year 2018. It is basically an umbrella scheme. So कोई नई स्कीम नहीं है, जो पुरानी स्कीम थी उनको कलेक्ट करके एक सिंगल स्कीम में कर दिया। और गवर्नमेंट यूजुअली ऐसा क्यों करती है, सो दैट यहाँ पे अब आपको हर पर्टिकुलर स्कीम के लिए आपको अलग से पैसा लोकेट नहीं करना है, आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए पैसा लोकेट कर दोगे। अब जो डिपार्टमेंट है, जो स्टेट्स हैं, वो अपने हिसाब से इन तीनों के बीच में जो उनके रिक्वायरमेंट उस हिसाब से यहाँ पे अपना जो एलोकेशन है उसको कर सकती है।
इट्स ऑल्सो अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दो टाइप की स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 100% जो होता है वो सेंटर नहीं देता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर में देता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में देता है। स्पॉन्सर स्कीम में जो शेयरिंग होती है, जो फंड्स होते हैं उनको शेयर किया जाता है, तो 60% फंडिंग तो सेंटर से आती है एंड 40% इसमें स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें हमने 3 स्कीम्स को, पुरानी जो स्कीम्स है उनको एक ही जगह सब्स्यूम कर दिया गया है। तो पहली है टीचर एजुकेशन की स्कीम, कि जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में टीचर आ चुके हैं उनको रेगुलरली ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप ये टीचर एजुकेशन स्कीम रन करते हो। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स रन होते रहते हैं टीचर के प्रोग्रेशन के लिए। सेकेंड है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो जैसे आपको दिख रहा है कि माध्यमिक, तो जो आपकी इंटरमीडिएट स्किल होती है, मिडिल स्किल्स होती हैं, उस एज ग्रुप के लिए या उस ग्रेड्स के लिए आप ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करते हो, तो सिर्फ उन क्लासेस पे फोकस होता है। और एक है आपका सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंदर में आप यूनिवर्सल लिटरेसी के ऊपर में वर्क करते हो। तो ये थोड़ी सी ब्रॉड स्कीम है, तो यहां पे सिर्फ चिल्ड्रंस एजुकेशन नहीं, एडल्ट एजुकेशन, वो सब भी आपका सर्व शिक्षा अभियान का पार्ट है, बट मेजरली यहां पे भी आप चिल्ड्रन एजुकेशन पे वर्क करते हो। तो यहां पे इन तीनों स्कीम्स को आपने सब्स्यूम करके कर दिया एक ही स्कीम में, विच इज योर समग्र शिक्षा अभियान। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो इस पर्टिकुलर स्कीम का पेमेंट क्या होता है, क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने के अंदर में इसका पेमेंट होता है। तो जो इस मंथ का, इन लास्ट क्वार्टर का जो पेमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने से डिनाई कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे एक कंडीशन पुट अप करी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को पीएम श्री जो स्कीम है उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा, तो ही हम पैसे को एलोकेट करेंगे। अब यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू अराइज हो जाता है कि क्या सेंटर ऐसा कर सकती है, क्या सेंटर स्टेट को बाउंड कर सकती है कि जो एक ऐसी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है इसका पैसा मैं आपको तभी दूंगा जब आप मेरी जो दूसरी स्कीम है उसको भी आप यहां पे इंप्लीमेंट करोगे। तो आप पीएम श्री को एक्सेप्ट करेंगे तो ही मैं आपको इस स्कीम के लिए पैसा दूंगा। तो यहां पे आपका फेडरलिज्म का क्वेश्चन भी आ जाता है कि कहीं ये फिस्कल फेडरलिज्म जो होता है कहीं उसका ब्रीच तो नहीं है। यहाँ पे फिस्कल फेडरलिज्म जो होता है इसका मतलब होता है कि जो सेंटर और स्टेट्स हैं, जो स्टेट के पास में पैसा आता है वो सेंटर से भी डिपेंडेंट नहीं उस पैसे के लिए, दोनों को पैसा कॉन्स्टिट्यूशन के एलोकेशन के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी जैसे आपका है तो इसके अंदर में जो सेंटर ने पैसा कलेक्ट करा है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंटर कि वो स्टेट को पैसा देना चाहता है तो देगा, नहीं देना चाहता है तो नहीं देगा, किसी स्टेट को ज्यादा देना चाहता है तो ज्यादा देगा, किसी को कम देना चाहता है। यहां पे हमको सेट प्रिंसिपल्स के थ्रू चलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के थ्रू हमने डिफाइन करे हुए हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी आपके फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म में क्या रिक्वायरमेंट है कि जो स्टेट है वो सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए विद रिगार्ड टू द फंडिंग्स ऑफ इट्स स्कीम। तो यहां पे क्या ऐसा स्टेट कर सकती है, नहीं कर सकती? प्रोबेबली यहां पे हो सकता है तमिलनाडु इस पर्टिकुलर चीज को यहां पे कोर्ट में जाके चैलेंज करे कि हाउ कैन दे स्टॉप द फंडिंग फॉर अनदर स्कीम एंड हाउ कैन दे फोर्स मी टू ज्वाइन अनदर स्कीम। तो क्या ऐसे कोर्ट क्या ऐसे सेंटर कर सकता है, नहीं कर सकता? तो मे बी कोर्ट के जजमेंट से हमें पता पड़ेगा। मोर ओवर जो पीएम श्री स्कीम है ये भी कोई इस साल की स्कीम नहीं है, इट वाज अ स्कीम लॉन्च इन 2022 और इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा या ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने 2020 में लॉन्च करी थी, हम इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ मोटिवेटिंग कुछ थोड़े से क्या बोलते हैं, आप कुछ स्कूल्स को यहां पे डेवलप करना चाहते हो एज एन एग्जाम्पल आप डेवलप करना चाहते हो कि आगे जाके जो बाकी के स्कूल्स हैं वो इन एग्जाम्पल्स का या इन पर्टिकुलर मॉडल्स को यहां पे यूज कर सके और उसको अपनी स्कूल्स में इंप्लीमेंट कर सके। तो ये जो पीएम श्री स्कीम है ये भी एक आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जिसकी फंडिंग 60-40 में डिवाइड होगी और इट्स अ स्कीम विद अ सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्या होता है कि इसका एक एंड भी है। तो ये जो स्कीम है इसका पीरियड है 22-23 से 26-27 का फाइनेंशियल ईयर, यानी 5 साल की ये स्कीम है। 5 साल की स्कीम है। इसके अंदर में क्या करा जाएगा, 14,500 पीएम श्री स्कूल स्टैब्लिश करे जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। 14,500 स्कूल्स आप यहां पे पूरे ऑल ओवर इंडिया स्टैब्लिश करोगे और 5 साल तक इन स्कूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट रन करेगा। 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट रन करेगा और जो क्वालिटी की एजुकेशन वहां पे बनाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये यहां पे करेगा, 5 साल के बाद ये जो स्कूल्स होंगे इनको टेक ओवर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स और उनको मेक श्योर करना है कि जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स उन्होंने डेवलप करें इन द पीएम श्री स्कूल आगे जाके भी वो स्कूल में कंटिन्यू।
फिर यहां से स्टेट गवर्नमेंट यहां से लर्निंग लेगी कि कैसे इन स्कूल को रन करा जा रहा है, और जो बाकी के जितने भी इनके स्टेट्स के अंदर में स्कूल्स होते हैं उनको भी मॉडल अप करेंगे ऑन द पीएम स्कीम। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको फुलफिल कर पाए। ओके, सो दिस इज योर पीएम श्री स्कीम और जो डिस्प्यूट है आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पे आते हैं। सो इट्स ओनली अ वन लाइनर कि अभी अभी आपके जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ आईएएस ऑफिसर। सो जो आपकी द वेरी फेमस आईएएस सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें जो हाईएस्ट पोजीशन होती है इट इज ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, और ये हेड होता है ऑफ आईएएस, हेड ऑफ ऑल आईएएस। एंड द रीसेंट रिपोर्टिंग इज कि अभी आपके नई कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है विच इज टी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन अब राजीव गौबा इससे पहले आपके कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तो प्लीज अपडेट योर नोटबुक्स। आपने अब तक राजीव गौबा लिखा हुआ होगा, अब टीवी सोमनाथन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। इन्होंने अपना टेक ओवर कर लिया बिकॉज जो आपके राजीव गौबा इनका सुपर एनुएशन का रिटायरमेंट हो चुका है। सो प्लीज अपडेट योर नोटबुक्स कि अब आपके नए कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। तो ये वन लाइनर के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं LGBTIQA+ कपल कैन ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट सेंटर। सो अभी यहां पे फिर से मैं कैबिनेट सेक्रेटरी की भी बात करूंगा। सो हम थोड़ा सा वापस से एक बार का रिवाइंड करके एक बार वापस से LGBTQIA वाला जो लीगल हमारा प्रोग्रेशन उसको चेक कर लेते हैं। सो पहले आपके इंडिया के अंदर में सेक्शन 377 था आईपीसी का, जिसके अंदर में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करा हुआ था। होमोसेक्सुअलिटी वॉज क्रिमिनलाइज्ड अंडर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। फिर आपका एक जजमेंट आता है दिल्ली हाई कोर्ट का, नाज फाउंडेशन केस। उस नाज फाउंडेशन केस के अंदर में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसको वो यहां पे डीक्रिमिनलाइज कर देता है कि दिस इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इसको डीक्रिमिनलाइज कर देता है, यानी होमोसेक्सुअल जो है वो आपके साथ में रह सकते हैं। इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है सुरेश कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को, नाज फाउंडेशन जजमेंट को ओवररूल कर दिया जाता है। बट अब इस ओवर रूलिंग के अगेंस्ट में फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वापस एक केस जाता है, और फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है वापस। एंड यहां पे सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये ले डाउन करता है कि दो प्राइवेट पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका जेंडर क्या है, दो प्राइवेट पर्संस अपने प्राइवेट स्पेस में क्या करते हैं उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हाउएवर यहां से होमोसेक्सुअलिटी को थोड़ा सा लगता है कि अब शायद हमें और भी राइट्स मिल पाएंगे। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट डिमांडिंग राइट फॉर मैरिज, राइट टू मैरी। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है आपका सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपका सबसे रीसेंट जजमेंट है ये इसी साल का। एंड सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि राइट टू मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट। ये एक लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, यानी पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि वो राइट टू मैरिज को कैसे देना चाहता है, किन ग्रुप ऑफ पीपल को वो देना चाहता है। हाउएवर यहां पे सुप्रीम कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पे रिकमेंड करा कि वो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, LGBTIQ+ कम्युनिटी के लिए के वेलफेयर के लिए एक कमिटी फॉर्म करे, वेलफेयर कमिटी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेलफेयर कमिटी फॉर्म करी अंडर द प्रीवियस कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। तो एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, एलजीबीटी कम्युनिटी की जो वेलफेयर कमेटी है, एलजीबीटी कमेटी कह सकते हैं हम इसे, इसके हेड थे आपके राजीव गौबा, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी। एंड रिसेंटली उन्होंने कुछ यहां पे कुछ सजेशन दिए कि हम कैसे इनकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द रिकमेंडेशन वाज कि इससे पहले जो बैंक्स होते थे वो जॉइंट अकाउंट्स को ओपन नहीं करने देते थे फॉर द एलजीबीटी कम्युनिटी। कि अगर दो गे कपल है या लेस्बियन कपल, जैसे भी आप लगा लीजिए, दो गे कपल्स हैं, अगर वो अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते थे तो उसकी उनको परमिशन नहीं होती थी। बट अब वो जो आपके सेम सेक्स कपल्स हैं वो जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मोर ओवर इसके अंदर में जो नॉमिनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ देम डाइज,
अगर इन दोनों में से एक की डेथ हो जाती है तो जो अदर पर्सन है, जो सेम सेक्स कपल में जो अदर पार्टनर है, उसको ये नॉमिनेट कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट इन बैंकिंग, जो बाकी जगह भी होती है, इंश्योरेंस हो गए, सब जगह हो गए, वहां पे भी ये नॉमिनेशन में ऐसे पुटअप कर सकते हैं। तो यहां पे ये एक एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर में इन्होंने एक इंप्रूवमेंट, इनको एक वेलफेयर मेजर इनको यहां पे मिला है। ओके, सो यहां पे ये एक नई अपडेट है। नेक्स्ट पे आते हैं, मेंबर्स एट पैसिफिक आइलैंड फोरम बैक जॉइंट पुलिस प्लान मेंटेन टाइज विद ताइवान। सो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पैसिफिक आइलैंड फोरम की, तब हमने बात करी थी कि इनकी मीटिंग होने वाली है टोंगा के अंदर में। अब फाइनली इनकी टोंगा कंट्री के अंदर में जो मीटिंग थी वो फाइनलाइज हो चुकी है और उसका आउटकम आपके आज के न्यूज़पेपर में। सो मेजरली इट इज इंटरेस्टिंग कि ये बहुत छोटे आइलैंड्स है, बट ये बिकॉज पैसिफिक आइलैंड में फैले हुए हैं, तो आपका जो यूएस है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी कंट्रीज यहां पे अपना स्फीयर ऑफ बना के रखना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे शिपिंग रूट्स इन कंट्रीज के पास में जाते हैं। तो अगर इनसे फ्रेंड रिलेशंस होते हैं तो ये आगे जाके अगर इनको डेवलप कर पाए तो यहां पे ये खुद के डॉक्स और खुद के नेवल जो स्टेशंस होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। सो दे वांट फ्रेंड रिलेशन विद दीज कंट्री। तो यहां पे छोटी छोटी कंट्रीज को कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक मैन्योवरिंग भी करनी पड़ती है, सो दैट ये बैलेंस कर पाए। सो हम उन सब में तो हमारे इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट हमारा इंटरेस्ट है इनके कुछ स्पेसिफिक फैक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, पैसिफिक आइलैंड फोरम एग्जैक्टली है क्या? सो इट्स अ रीजनल ब्लॉक ऑफ 17 आइलैंड नेशन। तो पैसिफिक ओशन के अंदर में 17 आइलैंड ग्रुप है, स्मॉल एंड बिग। सबसे बड़ा इनमें फिजी है और बाकी के बहुत छोटे छोटे से कंट्रीज हैं। ये 17 आइलैंड नेशन जो है आपके इस पर्टिकुलर रीजनल ग्रुपिंग को फॉर्म करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो इनकी मीटिंग होगी तब तक इनका 17 से नंबर 19 हो जाएगा, बट फॉर अस द नंबर इज 17 ओनली। ओके, अभी जो 2024 के अंदर में मीटिंग हुई है, इट वाज होस्टेड बाय किंगडम ऑफ टोंगा। सो टोंगा जो है एक स्मॉल कंट्री आपकी पैसिफिक आइलैंड में, और इसने इस पर्टिकुलर मीटिंग को होस्ट करा था। इसके अलावा पैसिफिक आइलैंड का हेडक्वार्टर अब टोंगा में होगा। सो इट्स अ न्यू अपडेट। इस वाली मीटिंग में इन्होंने डिसाइड करा है कि जहां पे इन्होंने ये पर्टिकुलर मीटिंग करी थी, इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा या हेडक्वार्टर होगा, सेक्रेटेरिएट भी बोल सकते हो, हेडक्वार्टर भी बोल सकते हो इस फोरम का, इट वुड बी लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ टोंगा। ओके, इसके अलावा इंडिया जो है आपकी कंट्री, वो इनके साथ रिलेशन कैसे बनाता है? तो इंडिया ने एक फोरम स्टैब्लिश करा हुआ है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर में इंडिया इन कंट्रीज के साथ बैठ के कॉपरेट करने की ट्राई करता है और कैसे ये पैसिफिक आइलैंड्स को हेल्प कर सकता है डेवलपमेंट के अंदर में, उसके बारे में डिस्कस करता है। मोर ओवर यहाँ पे टुवालू कंट्रीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इफ यू आर रेगुलर विद आवर वीडियोस, यू वुड नो कि टुवालू वुड प्रोबेबली बिकम द फर्स्ट कंट्री जो आपकी एंड हो जाएगी। It will get underwater because of climate change. So next 30 years के अंदर में Tuvalu would become the first country which would be a non-existent country because of rise of sea level because of climate change, and now it would be non-existent country now. Okay, तो ये कुछ update है regarding this particular forum. नेक्स्ट पे आते हैं। सो अगेन वन लाइनर इंडियन एक्सप्रेस से हम पढ़ रहे हैं इसको। लास्ट विस्टारा फ्लाइट नवंबर 11 एज मर्जर विद एआई क्लियर्स फाइनल हर्डल। तो एक विस्टारा एयर, विस्टारा इज अ वेरी फेमस एयरलाइन। इट वाज फेमस फॉर इट्स level of quality also, and again AI is also famous for its ill quality when it's come to its services for the passengers. तो विस्टारा एयरलाइंस है जो जॉइंट वेंचर था टाटा ग्रुप का और आपके सिंगापुर एयरलाइंस का। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का ये एक जॉइंट ग्रुप था जो विस्टारा एयरवेज को रन करता था इंडिया के अंदर में, एंड दे आर वेरी फेमस, या दे वर कंसिडर्ड वेरी गुड इन कस्टमर सर्विस, एंड ऑन द अदर साइड इज योर एयर इंडिया, एंड इवन आफ्टर प्राइवेट टेक ओवर ऑफ दिस बाय टाटा ग्रुप, इट इज स्टिल नॉट एबल टू इम्प्रूव इट्स कस्टमर सर्विस। बट नाउ व्हाट हैज बीन डिसाइडेड इज कि इन दोनों एयरलाइंस को मर्ज करा जाएगा और इसको मर्ज करके एयर इंडिया के अंदर में ही नेम करा जाएगा। सो विस्टारा वुड नाउ बिकम नॉन एक्सिस्टेंट, और जितने भी विस्टारा एयरलाइंस है वो सब एयर इंडिया का पार्ट बन जाएंगे, एंड नाउ इट वुड बी अगेन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा एंड सिंगापुर ओनली। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ही इसके अंदर में आपके जॉइंट वेंचर होंगे, एंड सिंगापुर एयरलाइंस का शेयर होगा इसमें 25% कुछ। ठीक है, तो ये है परसेंटेज शेयर इंपॉर्टेंट नहीं, बट इट्स अ वन लाइनर कि एयर इंडिया और किस पर्टिकुलर एयरलाइन का यहां पे मर्जर हुआ है। सो इट इज एयर इंडिया एंड विस्तारा। आगे मूव करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है। सो कई बार ये न्यूज हमसे मिस हो जाती है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसको मैं कवर कर लेता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट न्यूज को मिस करते हुए। तो यहां पे आपका एक ये कॉन्क्लेव इज बेसिकली अ मीटिंग होती है यहाँ पे जो
आसपास की ये 3-4 कंट्रीज हैं, इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, तो जो सिक्योरिटी को लेके, नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठते हैं, वो सारे लोग इस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसको हमने 2011 में स्टार्ट किया था। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2011 और इट कंप्राइजेस ऑफ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड योर मॉरिशस। पहले इसमें सिर्फ इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे और बाद में 2020 में इसमें मॉरिशस भी ऐड हो गया। तो अब इट्स अ 4 कंट्री ग्रुपिंग। इसके अलावा आपकी बांग्लादेश और सेशल्स को हमने यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया है, बट यू शुड नो कि इसके 4 मेंबर्स कौन है, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस एंड श्रीलंका, एंड 2 ऑब्जर्वर नेशंस आर देयर, बांग्लादेश एंड सेशल्स। और ये मेजरली आपके 5 पिलर्स, 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ये डिस्कशन करता है। तो मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी पे, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, कॉम्बेटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड एज वेल एज डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो ये 5 ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर भी कॉन्क्लेव डिस्कस करता है कि कैसे हम रीजनल सिक्योरिटी का जो हमारा फ्रेमवर्क है, ये 4-5 कंट्रीज मिलकर कैसे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में इन सब चीजों पे वर्क कर सकते हैं। बिकॉज यहां पे जो आप 5 पिलर्स देख रहे हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रैफिकिंग, ट्रांसनेशनल क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू 1 कंट्री। यहां पे इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आसपास की कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें, सो दैट जो आपके ट्रांसनेशनल क्राइम्स होते हैं उनको हम स्टॉप कर पाएं। मोरओवर हमने इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट मतलब होता है कि जहां पे आपका परमानेंटली एक ऑफिस बना हुआ है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के रिगार्डिंग ही डिस्कशंस होते हैं। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो हमने कोलंबो में एस्टैब्लिश करा है ओनली इन ईयर 2021। एंड यहां पे क्या होता है, जो एनएसए लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर सेक्रेटेरिएट के थ्रू आपके इंप्लीमेंट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहां पे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कुछ भी डिस्कस होता है, अब परमानेंट सेक्रेटेरिएट यहां पे इस पर्टिकुलर चीज पे वर्क करेगा और फिर इसका जो फाइनल डिसीजन होगा इट वुड बी फॉरवर्डेड टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और नाउ इट वुड बी एडवाइजेबल ऑफ दीज एनएसएस कि वो अपने कंट्रीज के अंदर में ये सारे स्टेप्स को टेक करे, सो दैट कि आगे जाके आपका जो नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो बेटर हो पाए। ओके, सो दिस इज योर न्यूज रिगार्डिंग कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ओके, सो तमिलनाडु नेशनलाइज करुणानिधि's वर्क, व्हाट दिस मींस। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आपके जो तमिलनाडु के फॉर्मर प्राइम आपके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं एम करुणानिधि, ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ योर डीएमके पार्टी एम करुणानिधि एंड इज द लेट फादर ऑफ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम के स्टैलिन, उनके ये फादर है। और एम करुणानिधि ने जो आपके लिटरेरी वर्क्स करे हैं उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करने का डिसीजन लिया है। लिटरेरी वर्क्स को नेशनलाइज करा गया है। तो यहां पे हम इस चीज को समझते हैं। अगेन इफ यू डू इंडियन एक्सप्रेस, तो एक्सप्लेन सेक्शन इज अ वेरी गुड सेक्शन, उसको आप रीड करके समझ भी सकते हो। सो इंडिया के अंदर में आपका एक कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। सो आई होप यू आर अवेयर कि जितने भी लिटरेरी वर्क्स होते हैं, आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, उसमें जो उनका ऑथर होता है, ऑथर या क्रिएटर होता है, ऑथर बोल लीजिए, क्रिएटर बोल लीजिए, उसके पास में कॉपीराइट होता है, राइट होता है उसके पास कि उसको सिर्फ या तो वो खुद कॉपी करके सेल कर सकता है, अगर कोई और पर्सन उसको कॉपी करना चाहता है तो उसको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके एक्सचेंज में इफ ही वांट्स उसको कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा, जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, तो ऑथर या क्रिएटर को उसकी डेथ तक, उसकी जब तक डेथ होती है तब तक, प्लस उसके जो एयर्स हैं उसके 60 इयर्स तक। सो इंडिया के अंदर में भी एंड वर्ल्ड ओवर यही आपका कॉपीराइट का टाइम पीरियड होता है कि जब तक तो उसका लाइफ टाइम है तब तक तो उसके पास कॉपीराइट हो गई, और उसकी डेथ के 60 इयर्स के बाद भी उसके पास में कॉपीराइट एग्जिस्ट करेगा, उसके जो एयर्स हैं उनके पास में राइट रहेगा। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर किसी भी पर्सन को उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, उसके पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क्स को अगर यूज करना है तो उसके लिए या तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा या फिर ही कैन नॉट डू इट ऑल्सो। तो करना है तो आपको रॉयल्टी पे करनी ही पड़ेगी। बट आपका जो कॉपीराइट एक्ट है उसका सेक्शन 18 होता है जो अलाउ करता है अपने राइट को असाइन करने का टू अनदर पार्टी। अगर आप अपना कॉपीराइट किसी और को भी यहां पे असाइन कर सकते हो, बेसिकली आप किसी और को भी यहां पे कॉपीइंग का राइट प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहां पे जो इनके एयर्स हैं, करुणानिधि के एयर्स कौन हो गए आपके, जो उनके सन है एम के स्टैलिन। यहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और बेसिकली एम के स्टैलिन ने उनको, तमिलनाडु गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी है कि जो एम करुणानिधि का वर्क है उसको नेशनलाइज कर देंगे। नेशनलाइज करने का मतलब यह है कि ये अब आपका फ्री ऑफ कॉस्ट
फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक में अवेलेबल रहेगा फॉर कॉपिंग। तो आप इसको कॉपी कर सकते हो इजीली, आपको रीयूज कर सकते हो आप इसको, और आप इसका कमर्शियल यूज भी कर सकते हो, आप इसका कमर्शियल यूसेज भी कर सकते हो विदाउट आस्किंग द परमिशन ऑफ एनीवन। ना तो आपको एम करुणानिधि के हेयर से कुछ पूछने की जरूरत है, ना ही आपको तमिलनाडु गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक कर दिया गया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन। सिमिलर वाज द केस विद B.R. अम्बेडकर वर्क्स ऑल्सो। यहां पे एक उसका भी एग्जांपल है कि उनके जो ग्रैंडसन है प्रकाश आंबेडकर, उन्होंने अपना जो राइट था, अपने उनके पास में जो कॉपीराइट का राइट था, वो उन्होंने असाइन कर दिया टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1979 में जो B.R. अम्बेडकर की पूरा वर्क का वॉल्यूम है उसको पब्लिकली पब्लिश करा फॉर ओपन यूज बाय द पब्लिक। सिमिलरली हम जो एम करुणानिधि का जो भी लिटरेरी वर्क होगा, इट वुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक फॉर द कॉपिंग पर्पस। ओके, तो ये आपकी एक और न्यूज हो गई। यहां पे एक और न्यूज पे आते हैं। सर्टिफिकेट फॉर माय फिल्म इमरजेंसी हैज बीन स्टॉप्ड, सेंसर्स गॉट थ्रेट्स कंगना। सो कंगना रनावत विच इज अ फिल्म एक्टर इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज, उनकी एक मूवी आने वाली है इमरजेंसी, एंड नाउ शी इज एलिजेड की जो सेंसर बोर्ड है उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सर्टिफिकेशन होना होता है मूवी का, उसको यहां पे स्टॉप कर दिया गया है, विच माइट बी और माइट नॉट बी ट्रू, बट मोर डिटेल्स आर अवेटेड। बट इस केस के अंदर में हम सेंसर बोर्ड क्या होता है, फिल्म सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो इंडिया के अंदर में जो भी अगर आपको कोई भी आपको ब्रॉडकास्टिंग वर्क करना है, फॉर एग्जांपल चाहे आप टेलीविजन पे करिए, चाहे आप मूवी हॉल्स में करिए, चाहे आप ओटीटी पे करिए, उसमें देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कि जितनी भी आपकी फिल्म्स या मूवीज बनाई जाती हैं, जितने भी आपके आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं, उन सबको फिल्म सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका मीडियम क्या है। तो उस चीज के लिए हमने एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट करी हुई है विच इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC, जिसी को हम अदर वर्ड्स में कॉमन लैंग्वेज में सेंसर बोर्ड भी बोलते हैं, जिसको हम कॉमन पार्लेंस में सेंसर बोर्ड भी बोलते हैं। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब लॉ के अंदर में बनाई हुई है, और ये बॉडी बनाई है आपने सिनेमाटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952, सिनेमाटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952। और इसका काम क्या है, इट रेगुलेट्स द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1950। तो अगर आपको पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करना है किसी भी आपकी मूवीज को, तो उसको आपको CBFC के थ्रू आपको फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये जो आपकी CBFC, इट वर्क्स अंडर, इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी बट इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट से कोई भी यहां पे गाइडलाइंस या उससे कुछ भी ऑर्डर्स नहीं लेती है, खुद से ही वर्क करती है, बट यस इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो इनकी सैलरीज होंगे एक्सेट्रा, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग पे डिपेंडेंट है, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया ऑल्सो। अब रिसेंटली यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फिल्म सर्टिफिकेशन की कैटेगरीज क्या क्या होती है। सो पहले जो आपकी कैटेगराइजेशन थी बिफोर 2023, तो रिसेंटली आपका एक अमेंडमेंट आया है। उससे पहले जो कैटेगराइजेशन होता था, इट वाज यूए सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट और एस सर्टिफिकेट। बहुत लोगों को एस सर्टिफिकेट नहीं पता होता है, स्पेशल क्लास सर्टिफिकेट, विच इज लिमिटेड फॉर व्यूइंग फॉर द स्पेशल कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऑपरेशन का वीडियो है तो सिर्फ वो डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल होगा। तो इस टाइप की कोई मूवी, डॉक्यूमेंट्री कुछ भी बनाई जा रही है, तो उस पर एस कैटेगरी लिखा होगा, दैट इट इज ओनली फॉर द व्यूइंग ऑफ अ स्पेशल क्लास ऑफ पीपल। ओके, यूनिवर्सल का मतलब होता है एवरीवन कैन गो एंड वॉच दिस पर्टिकुलर फिल्म। यूए का मतलब होता है कि यस इट इज यूनिवर्सल, बट इफ अ माइनर वांट्स टू वॉच इट, तो उसको एडल्ट के सुपरविजन के अंदर में देखना पड़ेगा। एंड फाइनली एडल्ट का मतलब होता है कि दिस पर्टिकुलर मूवी इज ओनली सुटेबल फॉर 18+। So only if you are a major, you are above 18 years, then only you can watch an adult movie. बट अब हमने इस अमेंडमेंट एक्ट 2023 के थ्रू इसमें कुछ सब कैटेगराइजेशन करा है और डिवीजन करा है, और वो क्या है, हमने एज बेस्ड क्राइटेरिया इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो जो यूए सर्टिफिकेट होता है वो 3 टाइप का हो चुका है आपका। पहले UA+12 ही होता था, अब पहले UA was UA+12, तो यहां पे 12 अबव ही देख पाते थे। अब यहां पे क्या हो चुका है, हमने 3 कैटेगराइजेशन कर रखे हैं मूवीज के। तो आपका एक पर्टिकुलर मूवी अंडर एडल्ट सुपरविजन फॉर 7+, यानी 7 से कम है तो आप मत दिखाइए, एडल्ट सुपरविजन में भी आप नहीं दिखा सकते हो। सेकेंड कैटेगरी इज UA 13+, विच मीन्स कि ओनली इफ यू आर अबव 13 years देन यू कैन वॉच दिस मूवी अंडर एडल्ट सुपरविजन। यानी इफ यू आर 12 years old, देन इवन अंडर एडल्ट सुपरविजन इट इज नॉट फिट फॉर चिल्ड्रंस व्यूइंग।
एंड द थर्ड ग्रुपिंग इज अंडर एडल्ट सुपरविजन 16+, विच मीन 16 से अगर आप 18 एज ग्रुप में हो तो भी अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इट वुड ओनली बी अलाउड अंडर एडल्ट सुपरविजन। एंड अगर आप किसी मूवी हॉल में जाओगे, इट इज वेरी इजी टू गेट अ टिकट इन अ सिंगल स्क्रीन, और इस टाइप से वहां नहीं होता इतना टाइप से, बट अगर आप मल्टीप्लेक्स में जाते हो, प्रॉपर आईनॉक्स में, पीवीआर में जाते हो, तो वहां पे आपका एज जो सर्टिफिकेशन होता है या एज का क्राइटेरिया उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। तो अनलेस आप इस एज ग्रुप में फॉल नहीं करते हो, आप उन मूवीज को वॉच नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट अलाउड। ओके, तो ये था आपका रिगार्डिंग द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ऑल्सो नोन एज सेंसर बोर्ड। ओके, so student, these were the important news headlines from today's Hindu and Indian Express. So that's it from my side for today. Thank you and have a very nice day.